Everyone, good evening, all the friends here. Warm welcome to this session, which was a need of the hour. As this tsunami of cases started from, say, 5th or 7th of April in our Delhi NCR region or North India. Bombay started, Maharashtra started earlier in February, where we were hearing all of that is happening and going on there. So we created immediately a Tajurba COVID stop group. And a lot of people have been supported by Dr. Amit Verma. He had been taking call 24/7. 24/7 literally means 24/7. Anybody can call him middle of the night and he's always been supporting people. And amazingly, in the last 1 year, he's treated and cured over 2,000 patients without hospitalization. As per him, it's the rarest of the rarest cases where you need hospitalization. Otherwise, there's no need of hospitalization if this dreaded disease is managed well from the day one. Step-by-step process, complete protocol. So those of you who don't know me, a little bit about myself, my name is Suresh Panchirabani. I'm co-founder of Tajurba Network. Tajurba is a community of entrepreneurs present in Delhi, NCR, Mumbai, Pune, and South, Dehradun, Calcutta. We are a community of entrepreneurs, help each other, one for all for one. I'm a serial entrepreneur with 43 years of experience, presidential awardee, author of 4 books. 5th one is getting published in May, and a sales trainer and an OKR business coach expert. About Dr. Verma, I would sum up his introduction in 4 lines, and after that I'll hand over to him. काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए. So over to you, Dr. Amit Verma. I'll be asking him questions, then we'll open the floor for your Q&A. Good evening, everyone. My name is Dr. Amit Verma. I am CEO and founder of Vrikshkalp Ayurveda. And it's been now 6 years. I have done my MD in Ayurveda Kaya Chikitsa, which is like medicine of Ayurveda. And now I'm practicing from last 6 years. Or in the past 6 years, I had treated more than 50,000 patients suffering from various acute and chronic disorders. And where I say I have treated means it's about the cure and reversal of the disease, just not suppressing their symptoms for time being and just giving them relief for some days. It's about the giving the happiness throughout the life, where they can say that they don't have any disease. And out of that, I have expertise, especially in any kind of arthritis, autoimmune disorders, allergic disorders. I'm expert of all these things, where I had treated more than 10,000 patients who had been suggested for the surgeries, or who had been suggested that they can't walk in their life again, who had their serious injuries in their back, and doctor had told them like, you can't walk throughout the life. And I made them to walk again in their life. And now recently, with the scenario, with the panic situations, when I have seen around, I took this step. And definitely this whole Tajurba family, Suresh sir is there, Uma ma'am is there, who supported me throughout this journey. So I took these hard decisions. Okay, I'm going to serve as many as people I can in these panic situations 24/7. Yes, exactly. Thank you so much, sir, for appreciating that. Like, you call me at night 3 o'clock, I guarantee you that within 2 rings I will pick up your call, and I will answer your call, and I will answer your questions. I don't have anything to say like this, why you are calling at 3 in the morning, fever will get down, or you can call me in the morning 7 o'clock. No, you call me anytime. I know, because it is a game, it is a war of 14 days. And why I'm saying this war of 14 days, I will explain in the coming time. Like, why I'm saying it's a war of 14 days. Each second, each minute is important. Your one step at correct time can save your life. That's it. So thank you so much, sir, for providing this platform. And definitely I will try my best to add value to life of the people. And through these people who are present here, maybe I can change the life of 1 million of person. I can save life of 1 million of person. Thank you so much. Okay, so डॉक्टर साहब, अमित वर्मा का क्लिनिक और सेंटर मालवीय नगर में है, साउथ दिल्ली में.
but he's available with video and telephone call to all over India. तो डॉक्टर साहब, ये जो इतना पैनिक सिचुएशन है कोविड-19 को लेके, क्या है कि नंबर्स, हालांकि देखा जाए पॉजिटिव साइड देखी जाए तो 98% या 99% रिकवरी रेट, लेकिन क्योंकि एक 2% या 1% डेथ रेट अगर हम समझें कि लाख के ऊपर पकड़े तो 2000 होता था, आज करोड़ करोड़ केस हैं तो उसमें लाखों हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि किसी ना किसी घर में कहीं ना कहीं हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो रही है हर घर में। तो इतना पैनिक है, जबकि 98% रिकवरी रेट बहुत होता है, लेकिन समहाउ हम सबके दिमाग नेगेटिव हुए पड़े हैं, सोच नेगेटिव हुई पड़ी है और एक पैनिक की सिचुएशन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए सर मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करना चाहूंगा। पैनिक सिचुएशन होने के ना बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक यू कैन फाइंड डिफरेंट रीजंस फॉर पैनिक। होता क्या है कि सर अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस पर डे, पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के माइंड में, जैसे भी आपने बताया कि बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई है, लोग यही देख रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कोरोना हुआ, वो एक्सपायर हो गया, उन्होंने वीडियो देखी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उन्होंने वीडियो देखा रोड पर कोई मर रहा है। बट थिंग इज दैट कि लाइक ये एक नॉर्मल सी बात है कि अब हमारी वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लोग हो, अब ये आप देखिए ना, रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना। अगर कहीं पर अच्छे कोई ऐसे नॉर्मल जिंदगी चल रही है, हम खड़े होकर वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते। पर थिंग इज कि अभी हमें जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, हमें वही दिख रहा है कि जो बुरा हो रहा है, हमें जो अच्छा हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम सब उसी पैनिक सिचुएशन में, जिस दिन पता चलता है कि कोरोना हो गया, हमें लगता है कि मतलब 3 दिन बाद बुखार होगा और तेरे फेफड़े खत्म हो जाएंगे और तुझे उसके बाद हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ेगी। और उसकी वजह से क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहला दिन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है कोविड इन्फेक्शन का, उस डे को तो हम भूल जाते हैं और हम पहले 3-4 दिन इसमें खराब कर देते हैं कि पहले बार ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम कर लेते हैं, या पहले बार देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में बेड मिलेगा नहीं मिलेगा। और हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि एक एक सेकंड, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब सिनेरियो को देख के हम पैनिक हो जाते हैं और हम चीजों को और भागने लगते हैं। मैंने जैसे एक बार बताया था आपको कि मैं ऐसे ही निकला अपने साउथ दिल्ली में सर्वे करने के लिए, लोगों से मिला, थोड़ा मैंने बात की सबसे। सो मींस रियली आई एम शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड लिटरली कि लाइक मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल के बाहर जो लोग खड़े हैं, ऑक्सीजन लेने के लोग खड़े हैं, उसमें से 30-40% लोग ऐसे भी थे जिनको जरूरत ही नहीं है। या मेरे पास जो कॉल आते हैं वो इतने पैनिक होते हैं, उनको पहला कॉल ये होता है, सर कहीं पर ऑक्सीजन बेड मिलेगा? मैं उनको बोलता हूँ प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है। सर ऐसे हो रहा है, कल तक ऑक्सीजन 96 थी, आज 90 आ गई। इट्स ओके, होता है, इन्फेक्शन है, वायरल लोड है, अंदर खांसी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सिनेरियो क्या है और इसलिए बहुत पैनिक होता जा रहा है। तो हर एक को डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की जरूरत है स्पेशल ट्रीटमेंट की? सर हर पेशेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी रिसर्च शो कर चुकी है, 85 to 90% ऑफ पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे केसेस हैं जो घर पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, अपना रेजिमेंट फॉलो करके, वो घर पर रहकर ही, जो होम हॉस्पिटलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं, उसमें रह के ठीक हो सकते हैं। सबको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो होम आइसोलेशन में किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि जैसे ही कोविड के सिम्टम आने शुरू हुए ना, पहले तो सिम्टम आते हैं, ऐसे तो कोई टेस्ट कराता नहीं है, तो कुछ बुखार होता है, कुछ खांसी होती है, कुछ जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, कुछ सिम्टम, बाकी जो सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, वो सारी चीजें। तो व्हाट शुड वी डू स्टेप बाय स्टेप? सर होम आइसोलेशन के लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो एक बैटल है 14 डेज का। एक ये 14 डेज का वो बैटल है जिसमें एक एक दिन, जिस दिन पहले दिन सिम्टम आया वहां से लेके आखिरी दम तक, 14 डेज के लास्ट मिनट तक आपको लड़ना है और बहुत ही चतुराई से आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए। यू शुड बी वेरी क्लेवर, क्योंकि बिकॉज पहला सिम्टम आप ही नोट करने वाले हो। तो होम आइसोलेशन के सबसे पहले जो सबसे जरूरी स्टेप है सर, जिस दिन पहला सिम्टम आपको लगता है, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये वायरल का सिम्टम हो सकता है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, बट मेरा ये कहना है कि अभी जो ये टाइम चल रहा है, ये टाइम ये सोचने का बिल्कुल भी नहीं है कि अभी मैं 2 दिन वेट करता हूँ, ये कॉमन कोल्ड का सिम्टम हो सकता है, नॉर्मल वायरल का सिम्टम भी हो सकता है, मुझे टाइफाइड भी तो हो सकता है, मुझे मलेरिया भी तो हो सकता है। मैं क्या बताना हूँ, होम आइसोलेशन सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पहले दिन, जिस दिन जो भी सिम्टम आपको लग रहा है, आपको कोल्ड हो गया नॉर्मल, डोंट टेक इट लाइट।
आपको आयुर्वेदा पसंद है, आपको एलोपैथी पसंद है, आपको होम्योपैथी पसंद है, जो भी आपका ट्रस्ट है, आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है, सेम डे रिपोर्ट टू हिम एंड स्टार्ट इमीडिएटली ट्रीटमेंट फॉर द वायरल डिसीज। उसके बाद टेस्ट के लिए दे दीजिए, आप आरटीपीसीआर करवाइए, आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बोलता है आप करवाइए, लेकिन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। फायदा क्या है सर, अगर नॉर्मल वायरल है, ट्रीटमेंट चलना था वायरल का, ठीक हो जाओगे। अगर नॉर्मल वायरल नहीं है तो एटलीस्ट यू विल नॉट वेस्ट योर 2 और 3 डेज, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद का प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट का, आयुर्वेद का अपना प्रोटोकॉल है, एलोपैथी का अपना प्रोटोकॉल है, बट डिसीज की अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इस डिसीज के लिए मैं एक रूल बोलता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 days. So these are 6 monetary steps in the COVID. 1, 3, 5, 7, 9, 11. अगर आप अभी मैं बताऊं कैसे ऑब्जर्व करना है। अगर आपने 6 स्टेप क्लियरली ऑब्जर्व कर लिए, अगर बाई चांस आपको एक कंडीशन ऐसी आई, आप उन 10% में 5% में आते हो जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो तब भी आपकी कंडीशन इतनी बेकार नहीं होगी कि आपको इतनी बुरे हालात हो जाए कि आपके लिए ट्रीटमेंट ही ना हो, अगर आप ये स्टेप को ऑब्जर्व कर लेंगे। बताएंगे जरा 1, 3, 5, 7, 11। सो फर्स्ट डे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मीन्स पहले दिन, जिस दिन भी आपको सिम्टम आता है, दैट इज योर फर्स्ट डे। आपको वो दिन कभी भी मिस नहीं करना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है कि इट कैन बी कॉमन कोल्ड, नॉर्मल फीवर, ओके, लिटिल कफ इज देयर, नो इश्यूज। सो फर्स्ट डे यू शुड नेवर निगलेक्ट, immediately consult your doctor and start your treatment. Then is 3. What is day 3? Day 3 is the आपका एक ब्रिज का मिड पार्ट है, मीन्स आप नॉर्मल इन्फेक्शन से सीवियर इन्फेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आपको पहले 3 दिन सीवियर बुखार बना हुआ है, सीवियर फीवर बना हुआ है, आपका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, आपको हाई ग्रेड फीवर है 101, 102, सीवियर बॉडी पेन, सीवियर हेडेक है, और आपको खांसी भी आ रही है या कोई छाती प्रेशर सा फील हो रहा है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर आपको इतने हाई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको थर्ड डे आपको फर्दर इवेल्युएशन की जरूरत है। जिस टेस्ट की बात करेंगे हम आगे, कि जो जनरल टेस्ट होते हैं तो थर्ड डे किए जाते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन टेस्ट जो थर्ड डे किए जाते हैं वो होता है आपका सीआरपी, डी डाइमर, IL-6, LDL, फेरेटिन एंड सीबीसी। दीज आर द जनरल टेस्ट जो डे थर्ड पे किए जाते हैं। लेकिन कब किए जाएंगे? अगर आपका फीवर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 101, 102 फीवर आ रहा है, तो आपको थर्ड डे टेस्ट करना है। अगर आपको पहले दिन फीवर आया, दूसरे दिन फीवर नॉर्मल हो गया, फीवर है ही नहीं आपको, तो यू विल वेट फॉर 5th डे, दैट इज 5। यू विल वेट फॉर 5th डे। अब 5th डे क्यों कह रहा हूं? अगर आप 5th डे तक पहुंच गए हैं, आपको कोई फीवर नहीं है, कोई सीवियर सिम्टम नहीं है, तो ये 5th डे आप अपने आप को अभी सेफ्टी के लिए अगर इवेल्युएट करना चाहें तो 5th डे को 2 तरह से इवेल्युएट किया जाएगा। एक तो जिनका इवेल्युएशन थर्ड डे पे हुआ था वो अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए 5th डे पे या 6th डे पे टेस्ट करवाएंगे, या जिसको अब तक कोई सीवियर सिम्टम नहीं था वो आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज जो 6th डे से लेके 10th डे का जो टाइम होता है वो बहुत सीरियस टाइम होता है कोविड पेशेंट के लिए, जिसमें कोविड का इन्फेक्शन पीक पे जाता है, जिसको हम आजकल बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, कि बॉडी में एक तूफान आता है और तूफान आपको लंग्स के इन्फेक्शन की ओर लेके जा सकता है, वो तूफान आपको सीवियर खांसी कर सकता है, बहुत तेज बुखार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो 5th डे है उस पर इवेल्युएशन किया जाएगा आपके साइटोकाइन स्टॉर्म को लेके, जिसके लिए बेसिकली टेस्ट जो किए जाते हैं वो डी डाइमर है, सीआरपी है और IL-6 है। दीज आर 3 मेजर टेस्ट जो किए जाते हैं आपके साइटोकाइन, जो आपकी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है उसको चेकआउट करने के लिए कि वेदर वो स्टॉर्म आपको आ सकता है, कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 5th डे किए जाते हैं। अब होता क्या है, 5th डे को हमने टेस्ट करवा लिए और मान लो फॉर एग्जांपल हमारे लेवल हाई है, नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेंगे। अब आता है डे 7th। डे 7th का टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फॉर एग्जांपल अभी आप डे 7th में आ गए हैं, आप उस जो बीच की मझधार है 6th to 10th डे, जब कोविड का इन्फेक्शन किसी भी एक साइड जा सकता है, आप नॉर्मल की साइड होना जा सकते हैं या आप सीरियस भी हो सकते हैं, आप किसी भी एक साइड जा सकते हैं। तो 7th डे पे फर्दर इसको मतलब री इवेल्युएशन किया जाता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सबके अंदर किया जाता है, बट मोस्टली डे 7th इज सब्जेक्टिव एनालिसिस, कि आप अपने कंसल्टेंट को बताएंगे सर मुझे फीवर आना शुरू हो गया है, जैसा आपने बोला था फीवर आ सकता है, मुझे खांसी फील हो रही है, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो 7th डे में आपको सब्जेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है, आपको अपने कंसल्टेंट को बताना है इमीडिएट इफेक्ट के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है जो है 9th डे। 9th डे क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको अभी तक आपकी तबीयत ठीक चल रही है, डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फीवर कभी आ रहा है कभी नहीं जा रहा है, हल्की सी खांसी महसूस हो रही है और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि आपकी बॉडी कैसी चल रही है, वन थिंग। सेकंड, ऑलरेडी अगर आपका इन्फेक्शन सीवियर हो चुका है, सेकंड थिंग, दोनों की रीवैल्यूएशन की जाती है स्पेशली विद द HRCT चेस्ट टू सी कि आपके लंग्स के अंदर निमोनिया तो नहीं बन गया है, या आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कोई निमोनिया के लक्षण तो नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियरली सजेस्ट करना चाहूंगा, रैंडमली सीटी स्कैन के लिए नहीं जाना, प्लीज रैंडमली सीटी स्कैन के लिए नहीं जाना है अनटिल अनलेस आपको कोई सिम्टम नहीं लग रहा है, कोई भी आपके चेस्ट से रिलेटेड, कोई भी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या कोई आपके पीछे के पैरामीटर खराब ना चल रहे हो, जब तक प्लीज डोंट गो फॉर सीटी स्कैन रैंडमली। बिकॉज आपके लिए ही बेनिफिट बता रहा हूं कि एक सीटी स्कैन करने का मतलब है 300 एक्सरे ऑफ चेस्ट। सो इंटेंशनली with your random thoughts you are damaging your system of your body, और एक्सरेज बहुत नुकसान करती हैं, ये आपको ही पता है, फ्यूचर में बहुत सारी डिसीज का कारण बन सकती है। तो बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 3-3 सीटी स्कैन कराते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया सर, उसने क्या किया कि ही सेंड मी रिपोर्ट, बोले सर कल मुझे बुखार आया, मैंने आज सीटी स्कैन कर लिया, कुछ भी नहीं है सीटी स्कैन में। तो लोगों को इतने पैनिक हो गए, उनको ये नहीं पता है सीटी में इन्फेक्शन आने में 5 से 6 दिन लगते हैं निमोनिया होने में। आज ऐसा नहीं आज पहले सिम्टम आए कल निमोनिया हो जाएगा। So this is 9th day, most crucial time to evaluate कि आप सेफ साइड की ओर हैं कि आप निमोनिया की साइड में, आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। एंड 11th डे इज द फाइनल डे, जब आप बैटल जीत जाएंगे। 11th डे को आपको अपनी सब्जेक्टिव मॉनिटरिंग करनी है, कोई सिम्टम नहीं है, SpO2 ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक आ रही है, पिछले 3 दिन से फीवर नहीं आया है, इट्स टाइम टू स्टॉप यार, और टू से यू आर कोविड फ्री। बिकॉज 10th डे तक, और अगर पिछले 3 दिन से आपको फीवर बिल्कुल भी नहीं आया है और 10th डे के बाद कोरोना वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद अगर RT-PCR में भी पॉजिटिव आता है तो 99% दे आर द रेजिडुअल और डेड वायरस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है। तो 11th डे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन और डे ऑफ द most of the cases day of hospitalization, serious ICU ventilator, because अगर निमोनिया बहुत ज्यादा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो they can shift to the ICU ventilator or you can be completely safe or you can say I am happy, I am COVID free. So this is rule of 1, 3, 5, 7, 9, 11. ये 6 ऑब्जर्वेशन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, ऑक्सीजन की मारामारी से, महंगे महंगे इंजेक्शन से, पैनिक सिचुएशन से इजिली बचा सकती है। जस्ट कीप इन टच विद कंसल्टेंट रेगुलरली। डॉक्टर साहब अगर बात करें बहुत ज्यादा, वो जो इंजेक्शन की इतनी डिमांड, हजारों रुपए के बिक गए, 40-40 हजार के रेमडेसिविर, या स्टीरॉइड्स की बहुत, एकदम मेंड्रोल का एक वीडियो चला, एक डॉक्टर यूके से बता रहे थे, तो एकदम लोग स्टॉक करने लग गए, स्टीरॉइड घर में ही रखने लग गए, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और ये पैनिक सिचुएशन होने का सबसे बड़ा एक रीजन बना है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली स्टीरॉइड मेड्रोल जो दे रहे हैं, स्टीरॉइड दे रहे हैं, वो बहुत ही एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बट इट्स वेरी क्लियर, बहुत हमारे माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अग्रवाल हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, और काफी अच्छे वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, वो इस बात को बोल चुकी है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मेड्रोल सबके लिए। कुछ सिचुएशन है, मान लो आपको 6 दिन हो गए, फीवर नीचे नहीं रहा, आपका 101, 102 फीवर चल रहा है, फीवर नीचे आ ही नहीं रहा है, उस केस में वहां पर स्टीरॉइड स्टार्ट किए जाते हैं टू स्टॉप दैट साइटोकाइन स्टॉर्म। जो वो एक है ना सर, घर के अंदर एक पुलिस और चोर दोनों है, और खूब लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई चल रही है, जब कोई समाधान नहीं हो रहा, बहुत कोशिश किया, पुलिस समझ रही है इसको, पुलिस को ऑर्डर नहीं है कि इसको शूट करना है, इसको समझाना है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, पुलिस को शूट आउट के ऑर्डर मिल जाते हैं, चलो मारो इसको, तो वो स्टीरॉइड है, उसको सोच समझदारी से वहां यूज करना है कि कब शूट आउट के ऑर्डर आएंगे, कब स्टीरॉइड को यूज करना है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले दिन से स्टीरॉइड अपनी मर्जी शुरू कर देते हैं, कंसल्टेंट लिखे या ना लिखे, और वो डोज भी शुरू करते हैं 16 mg BD, 8 mg BD। लेकिन क्या होगा कि जब वो उनकी बॉडी 6 दिन में सैचुरेशन पे आ जाएगी, और जब साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा बॉडी के अंदर, सेम स्टीरॉइड्स की बॉडी को हेल्प नहीं कर पाएंगे।
और इसकी वजह से जिनको स्टीरॉइड मिलने चाहिए उन बेचारों को मिल नहीं रहे हैं, लोगों ने अपने घर में स्टोर कर लिया, बिकॉज उनको लगता है सबको स्टीरॉइड खाने पड़ेंगे। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू सर, मैं भी इतने टाइम से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और 2000 से लोग ठीक कर चुका हूँ। 2000 में अब तक 3 लोग आए हैं मेरे पास ऐसे जिनको स्टीरॉइड खाना पड़ा। 2000 में 3? 3 लोग नहीं है, 3 लोग। तो इसमें एक सेल्फ मेडिकेशन जो मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सर। दूसरा, कंसल्टेंट का रोल, अभी हमारे एक रिश्तेदार को मैं देख रहा था, उनको कोविड था, तो जिनके बारे में हमने आपसे भी पूछा, तो उनके डॉक्टर उनको अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, एक एक दो दो दिन फोन के ऊपर। तो ये एक बड़ी टफ सिचुएशन हो जाती पेशेंट के लिए कि वो जिस डॉक्टर की शरण में गए हैं वो डॉक्टर ही उनके साथ अवेलेबल नहीं है, और तो वो क्या करे, वो फिर पैनिक में इधर उधर की सलाह लेके और काम शुरू कर देते हैं। सर डेफिनेटली मैं एग्री हूँ सिचुएशन से, बट इसमें तो ये यही है कि हमें इस चीज को समझना होगा कि पेशेंट के लिए कोविड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिसिन से भी इंपॉर्टेंट थिंग है ऑब्जर्वेशन। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोविड की इन्फेक्शन कोई चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर किसी पेशेंट ने सिम्टम बताने में एक दिन डिले किया तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको एग्जांपल देता हूँ सर, 6 डे तक आपके लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं आता, आप एग्जांपल लीजिए। अगर 7th डे पे आपको साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ खांसी शुरू होती है, सर 3 दिन के अंदर आपका 70 to 80% लंग डैमेज हो जाता है। आप सोचिए। सो अगर उसके अगर कंसल्टेंट या पेशेंट बताने में डिले कर दे 1 से 2 दिन, लंग इज डैमेज। तो अगर लेकिन मतलब उसी के है लिए कि अगर आपके कंसल्टेंट आपको अच्छी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा ढूंढिए जो आपको हमेशा यस अवेलेबल। यस टाइम की लड़ाई है ये सारी। सिर्फ 14 डेज सर, 14 डेज यू आर दिस साइड और दिस साइड। उसमें भी 3 14 days ज्यादा खतरनाक हैं जब ये एकदम से साइकोस yes बोल रहे बॉडी में। 6th to 10th day is very 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 crucial। तो लाइफ एंड डेथ इज इन 6 to 10 days। yes बाकी तो मॉनिटरिंग है, 5 दिन तक आपको मॉनिटर करना है अच्छी तरीके से। ओके, तो घर में कैसे कैसे ख्याल रखा जाए पेशेंट का जो होम आइसोलेशन में है और घर में एक ही बंदे को है बाकियों को नहीं है और ना होना चाहिए बाकियों को, वो अवॉइड करने के लिए, और उसकी किस तरीके से केयर रहनी चाहिए, उसकी क्या डाइट रहनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जिस दिन आपको पहला सिम्टम लगता है, किसी को भी पहला सिम्टम दिखता है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए और अपने आप को भी डबल मास्किंग में रखिए, अपनी फैमिली को भी सजेस्ट कीजिए डबल मास्किंग में रहेंगे, ठीक है। और कोई भी आपके आसपास नहीं आएगा, आपको आइसोलेट किया जाएगा। आपको जो भी चीजें करनी है, खाना पीना जो भी करना है वो बाहर से करेंगे। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन अच्छी नहीं होती, तबीयत खराब हो रही होती है, तो पास आके हेल्प भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए सिंपल सजेशन दूंगा कि आप मास्क पहनिए और आप डबल मास्किंग कीजिए एटलीस्ट। अगर आपका फेस शील्ड है तो फेस शील्ड यूज कीजिए, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। दूसरा, जो ये स्ट्रेन अभी प्रेजेंटली चल रहा है, इसमें देखा गया कि मोस्टली एक बार होता है तो पूरी फैमिली को ही हो जाता है, बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है। तो इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि जिस सीवियरिटी का इन्फेक्शन उनको चल रहा है उतनी सीवियरिटी का आपको होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि फैमिली में जिसको पहले होता है या दूसरे होता है उसको बहुत सीवियर सिम्टम आते हैं, बाकी सबको बड़े से लाइट सिम्टम होकर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो वो है। तीसरा चीज, होम आइसोलेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं तो हाइजीनिक नहीं रह पाते, हाइजीनिसिटी को भूल जाते हैं। तो उनको सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज अपने आप को हाइजीनिक रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल भी नॉन हाइजीनिक अपने आप को नहीं रखना है। फोर्थ चीज, अपने आप को रेगुलर स्टीम, दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी है आपको। और आज जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आपको जैसे नीम है या अदरक है या आप अजवाइन है या लौंग है या तुलसी का पत्ता है, इन सब के पानी उबाल के इनकी स्टीम आप ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और उनको मैं बताता हूँ कि आप जैसे आपके घर में कपूर मिल जाता है, लौंग भी मिल जाता है, अजवाइन भी मिल जाता है, इनको आप एक पोटली बना सकते हैं, ठीक है, कपड़े के अंदर। इसको आप एवरी 1 आवर में 2 से 5 मिनट तक स्मेल कर सकते हैं, तो आपकी लंग्स के जो एयरवे हैं वो क्लीन होते रहेंगे, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने में। और इसके अलावा मैं उनको बताता हूँ घर पे प्राणायाम कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली। जैसे बहुत सारी स्टडी प्रूव है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से आपकी वायरस की ग्रोथ को कैप्चर किया जाता है। और इसका सिंपल सा फैक्टर ये है कि सर, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंडर होती है तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस और रिएक्शन फेस बढ़ जाते हैं। जब आप भ्रामरी करोगे, आपकी माइंड जो बॉडी है वो काम की ओर रहेगी, तो इन्फेक्शन स्पीड अप जल्दी से नहीं होगा, उसको स्ट्रेस का माहौल नहीं मिलेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आएगा बॉडी के ऊपर। और मैं होम आइसोलेशन में बोलता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड प्रोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सांस की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको खांसी है या नहीं है,
14 डेज भूल जाइए सब कुछ और सुबह शाम प्रोनिंग और ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 6 दिन तक वेट करते हैं, खांसी तो है नहीं, अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करनी है। मैं उनको बोलता हूँ आप अपनी लंग्स के अंदर वीकनेस ही मत आने दो, तो वायरस अटैक कहाँ करेगा। मैं आज भी ये मानता हूँ कि आपकी बॉडी में डेफिनेटली वायरस बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन जाके कहाँ करेगा, जहां उसको शरीर में खाली जगह वीक जगह मिलेगी वहीं तो करेगा। अगर आपकी बॉडी में वीक जगह नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। अभी बताओ कोई घर में चोरी करने आता है, घर में सारे लोग बैठे होंगे, इसमें चोरी करने आए, घर में सारे लोग जागरूक बैठे हैं, संभल के बैठे हैं, कोई चोरी करने थोड़ी आएगा। ठीक है, अगर चोरी करने की कोशिश भी करेगा छोटा मोटा सामान लेके भाग जाएगा, सारा नहीं उठा पाएगा। तो सिंपल सी बात यही है, अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन अगर होगा तो छोटा मोटा स्मेल चली गई, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा खांसी जुकाम हो जाएगा, चला जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो होम आइसोलेशन में स्टेप बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी स्टेप, स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फ्रॉम फर्स्ट डे, चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो रहा है, आप बताना चाहते हैं कुछ सिम्टम आ रहा है, आपको लग रहा है, तो प्लीज चेंज योर कंसल्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए 14 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाइजली डिसीजन लेना है। डॉक्टर साहब, डाइट किस तरह की लेनी पेशेंट को? यस सर, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको जैसे ही कोरोना का इन्फेक्शन होता है, कोविड इन्फेक्शन होता है, उनको बॉडी में वीकनेस आने लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे, सर बिल्कुल भी जान नहीं, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता अपने पैरों के ऊपर। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी डाइट है, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कार्बोहाइड्रेट्स को गिव अप कर दो, शुगर को गिव अप कर दो, टच नहीं करोगे 14 दिन तक। जितना लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हो उतना अच्छा है, शुगर तो टच ही नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट खानी है। अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन टाइप है तो आप एग खा सकते हैं, चिकन वगैरह प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें डाइजेशन, कोई भी बॉडी में फीवर होता है, कोई बॉडी में डिसीज होती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा लो हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है, डाइजेशन भी स्लो डाउन हो जाता है। सो ईट वाइजली, जो हल्का हो पचने में और हाई न्यूट्रिशियस हो वो खाइए, हाई प्रोटीन रिच डाइट खाइए। ठीक है, आप एग खा सकते हैं, बॉइल्ड एग खा सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चिक पीस ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हाई प्रोटीन वैल्यू होती है। दूध ले सकते हैं, अब जैसे लोग जिंकोविट खाते हैं, अब मैं कहीं दूध पीजिए, आप दूध में बहुत सारा जिंक है, पीजिए दूध, सुबह शाम दूध लीजिए, हल्दी वाला दूध। फ्रूट्स के बारे में आपने शुगर बना कि फ्रूट्स कई बड़े हाई शुगर होते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, उसमें शुगर, आप फ्रूट जो आप ले सकते हैं उसमें जो शुगर होती है वो नेचुरल फॉर्म शुगर हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा आइडिया बताता हूँ, कोई भी फ्रूट रिपीट मत कीजिए। सुबह अनार खाया, शाम को सेब खा लीजिए, अगले दिन पपाया खा लीजिए, अगले दिन वाटरमेलन खा लीजिए, डोंट रिपीट द फ्रूट्स। तो उससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलता रहेगा, सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे, और आपकी बॉडी न्यूट्रिशियस रहेगी। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हैं, बार बार दाल नहीं खा रहे हैं, बार बार नहीं खा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट द प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे। प्रोटीन सप्लीमेंट ले लीजिए अकॉर्डिंग नीड, डायबिटीज है तो शुगर फ्री ले लीजिए, अगर डायबिटीज नहीं है तो नॉर्मल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर फ्री ले तो ज्यादा अच्छा है। उसके एक स्कूप को सुबह शाम दूध के साथ लीजिए, प्रोटीन को 14 दिन तक प्रोटीन लेते रहिए। मैं आपको कहता हूँ 80% चांसेस आपको वीकनेस आएगी नहीं। आप प्रोटीन रिच डाइट खाइए, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, कोकोनट वाटर पीजिए। प्लीज, घर पे रहने पे हम ना आलसी हो जाते हैं थोड़े, पानी तो बिल्कुल पीना छोड़ देते हैं, तो मैं कहूंगा अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखिए, जितना हाइड्रेट रख सकते हैं अपने आप को, जितना हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे उतनी बॉडी का क्लींजिंग मैकेनिज्म उतना स्ट्रांगली एक्टिव रहता है, उतने ज्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से। तो अपने आपको हाइड्रेट रखिए प्रॉपर तरीके से, फाइटिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। डॉक्टर, जो लोग को कोविड नहीं हुआ है और लॉकडाउन में घर में हैं, तो अमूमन देखा है वो अल्कोहल इंडल्जेंस, शराब और सिगरेट में और जंक फूड में काफी इंडल्ज हो जाते हैं। क्या उससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, लो होती है? और सर डेफिनेटली इम्यूनिटी फर्क पड़ता है, लेकिन मैं ना हमेशा से एक चीज देखता हूँ, हमारे मेडिकल सिस्टम में लगा लो या हमारी जनरल थिंकिंग में लगा लो, एक थोड़ा सा है ना इस चीज का प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट है। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा उन चीजों को देखते रहते हैं कि बोलते रहते हैं तुम सिगरेट पीते हो, तुम अल्कोहल लेते हो, तुम्हारी इम्यूनिटी लो है। बट मैंने पिछले 1 साल में समझा, मैं लोगों को जिस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, सर देखो अभी कोविड का हमें नहीं पता कि कितना टाइम चलने वाला है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अब मैं किसी में कहूंगी जब तक कोविड नहीं जाता 8 महीने सिगरेट मत पीना, अल्कोहल मत पीना, अब क्या होगा, मेरी तो सुनेगा नहीं, डॉक्टर बदल देगा या मुझसे बात करना बंद कर देगा, मेरे मैसेज पढ़ना बंद कर देगा। तो मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला सर, मैंने उनको बोला यार तुम जो भी करते हो करते रहो, तुम्हें कम कर सकते हो कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, एटलीस्ट ऐड दीज थिंग्स इन योर लाइफ। उनको बोल देता हूँ कि जैसे आप अगर बाहर काम करते हैं, लोगों के टच में रहते हैं, तो प्लीज डेली आके शाम को स्टीम लीजिए आप रेगुलरली, ठीक है, तो आपके एयर पासेस क्लीन रहेंगे। उनको मैंने कार्डा बता दिया, पीने कार्डा पीजिए।
लोगों के घर में जनरल तुलसी होती है, आप तुलसी का पत्ता खा सकते हैं। उनको जनरली बोल दिया प्रोटीन रिच डाइट खाइए, आपको जनरली मैंने बोल दिया कि आप फ्रूट्स ज्यादा खाइए। तो आप एटलीस्ट ये अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए, इट विल हेल्प टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। बिकॉज मैम ये क्लियर है कि इम्यूनिटी जो है वो एक डे का प्रोसेस नहीं है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक दिन में इम्यूनिटी, अब मैं देखता हूँ कि जैसे अभी कोविड ज्यादा हो गया ना, तो अब लोग क्या करते हैं कि उन्होंने मेडिसिन खानी शुरू कर दी है, लिम्सी, जिंकोविट, गिलोय, घनमटी, ये इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं, 15 दिन में इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होने वाली। 15 दिन में तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कहाँ से पैदा हो जाएगी? आपका जो ओज है, लड़ने की शक्ति है, ओज है जो, वो तो परम है, वो तो अंदर बिल्ट होता रहता है। आपकी डेली की एक्टिविटी आपके कर्म से बिल्ट होता है। तो ऐसे कर्म करना शुरू करो जिससे बिल्ट हो। ऐसे कर्म करो जैसे इम्यूनिटी बिल्ट हो। हाँ, प्राणायाम करो, योगा करो, वॉक करो, अच्छा सोचो, स्ट्रेस फ्री रहो, खुश रहो, इतना सारा कुछ है। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल jargon जो समझ में नहीं आता है लोगों को, कि सीआरपी हाई से क्या मतलब है? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बात बहुत नॉर्मल बताना चाहूंगा, लोग सीआरपी की रिपोर्ट देख के पैनिक हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गलती से पेट में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया मान लो 10 दिन से, आपका सीआरपी बढ़ जाएगा। इन बॉडी में कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बॉडी में इंफ्लामेटरी प्रोसेस को एक्टिव करता है, उसमें सीआरपी बढ़ जाता है। तो सीआरपी बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनटिल अनलेस। अब करना क्या है, मान लो आपका सीआरपी पहले दिन आता है, पहले 5 दिन में 10 से नीचे रहता है, ठीक है, तो आप 99% ये लगा लो टेंशन फ्री हो जाओ, आपका सीआरपी नहीं बढ़ेगा। अगर 5 दिन तक वो 10 से नीचे रहता है, 1% मान लो बढ़ भी गया, 15 आ गया, 20 आ गया, पैनिक नहीं होना। क्या करना है, 3 दिन के बाद रिपीट करना है। कितना प्रोग्रेस आ रहा है अब वो डिसाइड करेगा कि कैसा हो रहा है। इट इज जनरल, क्योंकि बॉडी में वायरस गया है, इतनी तबाही मची है, तोड़ फोड़ हुई है, लड़ाई हुई है जबरदस्त आपके बीच, आपकी बॉडी के बीच में वायरस की इतनी लड़ाई चल रही है। अब इतनी भी तो इन्फ्लेमेशन आएगी ना, थोड़ा बहुत सीआरपी तो बढ़ेगा बढ़ेगा। किसी का 5 बढ़ रहा है, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 30 तक भी बढ़ जा रहा है। बट वो कॉन्टिन्यूस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, आज 30 है, परसों 50 हो गया है, यस हमें सोचना पड़ेगा। आज 30 है, कल 32 हुआ है, बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं हुआ है, कम हो जाएगा 2-4 दिन में। तो सीआरपी हाई को लेके इतना पैनिक मत होइए। बट डेफिनेटली सीआरपी अगर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे आपको हाई फीवर है, तीसरे दिन 10 है, 5वें दिन आपने चेक किया 30 हो गया है, आपने 7th डे चेक किया आप 70 हो गया है, डेफिनेटली इट इज इंडिकेटर कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो इन्फेक्शन फेस है, बहुत स्ट्रांगली स्पीड से बढ़ रहा है और आपको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देन इट शुड बी टेकन केयर। इंजेक्शन वाला पॉइंट हमारा बात रह गया, मेंड्रोल का हमने कर लिया, जो इंजेक्शन की इतनी तबाही मची है। हाँ सर, जैसे रेमडेसिविर है, अभी जैसे मैंने बताया था कि बड़े अच्छे हमारे इंडिया के डॉक्टर इस बारे में बात कर चुके हैं। रेमडेसिविर सर का रोल क्या है, रेमडेसिविर इज फॉर डिक्रीजिंग द वायरल लोड, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं सर, कुछ लोगों ने तो पहले ही अपना रेमडेसिविर लेके रख लिया कि कभी तो कोविड होगा ही, ठीक है। दूसरे लोग जिस दिन पहले दिन बुखार आता है उस दिन से मैसेज दोस्तों को फोन करना, भाई रेमडेसिविर इंतजाम करो। इसमें 2 नुकसान है सर। पहले तो अपनी बॉडी को आप मैसेज दे रहे हो कि भैया तुम तो क्रिटिकल स्टेज में जाओगे ही जाओगे, तुम्हें तो रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए, तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगती है। सेकंड चीज क्या है, रेमडेसिविर जो है वायरल लोड कम करने के लिए है, तो ये उन लोगों को देना बहुत जरूरी है जिनको स्टार्टिंग से ही सिम्टम बहुत सीवियर कैटेगरी आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, फीवर रुक ही नहीं रहा, चौथे दिन से खांसी तेज शुरू हो गई, सांस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन लगातार ड्रॉप हो रही है, रेमडेसिविर नीडेड इन स्टार्टिंग फेज। पहले 8 दिन के लिए, पहले 8 दिन में ही रेमडेसिविर दिया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद रेमडेसिविर इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप एक बार अंदर आईसीयू पहुंच गए हो, रेमडेसिविर बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिन नहीं है उस चीज के लिए। तो रेमडेसिविर जो यूज होता है वायरल लोड कम करने के लिए यूज होता है, और इसको बहुत ही क्लेवरली यूज करना है, और जो आपके डॉक्टर आपसे बेहतर जानते हैं कि कब यूज करना है। आप पैनिक होकर रेमडेसिविर चाहिए, ये इंजेक्शन चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मत कीजिए। रेमडेसिविर सबके लिए जरूरी नहीं है। ओनली 5 to 10% ऑफ केसेस जो टॉप कैटेगरी में आ रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट में आ रहे हैं, उनमें से भी शायद 5% को रेमडेसिविर चाहिए होगा। ये वायरस क्या एयरबोर्न हो चुका है क्या? सर देखो, ये तो क्लियर है कि ये ड्रॉपलेट मेथड से पहले फैलता था। अभी जैसे WHO ने डिक्लेरेशन किया कि एयरबोर्न हो चुका है। एयरबोर्न का मतलब क्या, ये इसकी अभी कितना है कि हर जगह है कि एयरबोर्न का एक दूसरा मतलब ये होता है कि जब हम नॉर्मल 100 मीटर के एरिया में आसपास कहीं ना कहीं वायरस है, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, कोई कहीं ना कहीं खांसी रहा है और कितनी देर तक ये एयर में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग एयरबोर्न है ये।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि एयरबोर्न हो गया है। तो डेफिनेटली इसलिए WHO ने बोला है कि डबल मास्किंग बहुत जरूरी हो गई है। इफ यू आर गोइंग आउट, गो विद डबल मास्किंग। अच्छा, यस और सरफेस पे कितनी देर रहता है? किसी ने टच किया, बाहर से सर, खाना इसके लिए अभी बहुत सारी मंगाया? स्टडीज चल रही हैं, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। कभी कोई बोलता है कि स्टील में 2 घंटे रहता है, वुड में 1 घंटा रहता है, इसके लिए कोई ऐसा प्रूव स्टडी नहीं है। तो ओनली थिंग इज यू हैव टेक केयर ऑफ। मैं 2 हैबिट हमेशा बोलता हूँ जो मैं पिछले 1.5 साल से मैं ही फॉलो कर रहा हूँ। डबल मास्किंग करना है, और अगर आप बाहर कहीं पर हैं तो जस्ट कि एक तो आपको हैबिट अवॉइड करनी है अपने हाथों को आंखों पे, नाक पे टच करने की, ठीक है। और इवन दो आपको टच भी करना है तो एक हैबिट और बना लीजिए, 1 घंटे में अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। 1 से 2 घंटे में हर बार सैनिटाइज करो तो चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, ये IL-6 हाई होने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? IL-6 is the most important diagnostic tool, sir. Especially, I will say CRP with IL-6 का combination to check कि आपकी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है कि नहीं आने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस CRP और IL-6 दोनों बढ़ जाते हैं 5th और 6th डे पे। अगर आपकी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है तो ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर देखो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो आपने अगर उसी दिन ऐसे मेजर्स ले लिए, चाहे वो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं आयुर्वेद में ऐसे मेजर्स लेता हूँ कि उनके लिए क्या स्टार्ट करना है, इमीडिएटली क्या उनके ट्रीटमेंट में चेंज करना है, तो मैं वो करता हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा, I take help of my friends are there in allopathic system of medicines. I take help from them, I refer there कि हाँ इनका सर करो, देखो they decide their dose of steroid और steroid start करते हैं and situation is under control. एक डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मीन बाय CT जीन वैल्यू इन RT-PCR टेस्ट? ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग पहले दिन ही पैनिक हो जाते हैं। RT-PCR की रिपोर्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं CT जीन वैल्यू मेरी तो 14 है, मैं तो गया। उसकी 25 है, वो तो बच गया था, मेरी तो 14 वैल्यू आई है, मैं तो गया, मैं तो बचने वाला नहीं। तो सर ये है क्या? आपका जो ये वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, ये सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। ये MR एक तरह RNA है, सिंगल स्ट्रैंड। तो क्या होता है, ये इसकी एक स्पाइरल बैंड ऐसे, ये स्पाइरल बैंड हो गई, इसको पूरा करने के लिए दूसरा बैंड ऐसे बॉडी में बनता है, ठीक है, साइकिल बनती है। तो जब आपका ये चेक करते हैं RT-PCR सैंपल, तो ये साइकिल घुमाते हैं, यानी आपने एक स्पाइरल साइकिल घुमाई सैंपल की, दूसरी स्पाइरल साइकिल घुमाई, तीसरी साइकिल घुमाई, तो वो साइकिल घुमाते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि RT-PCR CT जीन वैल्यूज 18, इट मींस जब 18 बार साइकिल घुमानी पड़ी तब जाके आपके सैंपल में वायरस दिखा। CT जीन वैल्यू 25 मींस भाई साहब आपके यहाँ तो कोरोना मिल ही नहीं रहा था, आपके सैंपल में 25 बार साइकिल घुमानी पड़ी तब जाके इसमें कोरोना का इन्फेक्शन दिखा है हमें, तब इसमें हमें कोविड-19 का वायरस मिला है। किसी की CT जीन वैल्यू मिली 34 टाइम्स घुमाई तब जाके मिला है, और किसी को 35 तक घुमाने पर भी वायरस नहीं दिखा तो गवर्नमेंट कह देती है RT-PCR इज नेगेटिव। तो ये स्टैंडर्ड बना दिए कि 35 बार घुमाने पर भी अगर आपका वायरस नहीं दिख रहा है तो आपका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब है क्या, ये बताता है वायरल लोड कि CT जीन वैल्यू 14 है तो इट मींस उसका वायरल लोड ज्यादा है, इसलिए 14वीं साइकिल में ही दिख गया। बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन भी सीवियर कैटेगरी का होगा। मेरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, मैंने टाइम से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो उससे वो वायरल लोड कम हो जाएगा। अगर 25 वाला ये सोच के बैठा मुझे तो 25 CT जीन वैल्यू है, वायरल लोड बहुत कम है, मैं ट्रीटमेंट आराम से लूंगा, वो सीवियर कैटेगरी में चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, नॉट अबाउट द रिपोर्ट्स कि कितना वायरल लोड है। आपका एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड है। और ये CT सेवरिटी स्कोर इन HR-CT टेस्ट, CT CVT स्कोर इन HR-CT टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि एक तो पहली बात, प्लीज आप HR-CT के लिए सडनली मत भागिए। पहले 5 डेज में 90% तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, जब तक आपको सीवियर टाइप इन्फेक्शन, बहुत सीवियर कफ या कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको CT आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, डोंट गो फॉर रैंडम CT। CT CVT स्कोर होता है आपका कि आपके लंग्स को 25 लोब्स में डिवाइड करके आपका CT स्कैन करते हैं। तो वो चेक करते हैं आपको कितने लोब्स में निमोनिया है, तो आपका परसेंटेज ऑफ लंग्स इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है। तो नॉर्मली जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, उसको माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी में भी गया है, तो उसका नॉर्मल CT CVT स्कोर 5-6 आ सकता है, तो उसके लिए घबराइए मत। That is very normal। 40%, 70% लंग्स खत्म हो गए हैं, वो क्या है? हाँ वो बताऊंगा, वो सर लोग पैनिक हो जा रहे हैं वो रिपोर्ट देखते ही।
5 से 6 निमोनिया के पैच होना बहुत ही नॉर्मल बात है। माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में 5 से 6 निमोनिया के पैच। परसेंटेज में बातें चल रही है कि 40% लंग इफेक्ट हुआ उसका। सर वो डिवाइड कर रहे हैं लोग, जैसे 25 में 6 पैच आ गए तो उनके हिसाब से 30% लंग गया। अच्छा, तो वैसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 5 एक पैच आना बहुत नॉर्मल सी बात है किसी भी कोविड इन्फेक्शन पेशेंट को। इवन दो 8 से नीचे पैच अगर आपको है, इट इज वेरी 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 माइल्ड कैटेगरी। और 8 से 15 पैच आपको हैं, दैट इज मॉडरेट कैटेगरी। अगर आपकी SpO2 मेंटेन है, आपके वाइटल मेंटेन्स है और ऑलरेडी आप 9th और 10th डे में पहुंच चुके हो, तो 99% यू विल बी सेफ। जस्ट बी इन टच विद कंसल्टेंट, आप सेफ रहोगे। ओके। अगर 15 to 25 CVT स्कोर जाता है तब थोड़ा सा सोचने का विषय है। लेकिन आप कमाल की बात देखिए सर, अभी रिसेंटली मैं पॉजिटिव न्यूज देखता हूँ, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ दिन में क्या अच्छा हो रहा है। अभी रिसेंटली 3 पेशेंट लास्ट 3 दिन में अलग अलग स्टेट से रिकवर हुए हैं जिनका CVT स्कोर 24 और 25 था। अब बताओ, 98% लंग डैमेज, दे रिकवर्ड बैक। तो CVT स्कोर जो है आपका, वो अकेला एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो डिसाइड कर दे आपकी लाइफ का फेट क्या होने वाला है। आपके वाइटल्स, आपकी सैचुरेशंस, आपका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, आपकी बॉडी कैसी रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दे विल डिसाइड दैट कि आप कहां जाने वाले हो। तो CVT स्कोर तो पैनिक नहीं होना है। विशाल, सागर, शैलेंद्र, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अपने 1-2 क्वेश्चन खत्म कर लूं जो मैंने एजेंडा में रखे थे, उसके बाद आपके क्वेश्चन भी लेता हूं मैं। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन ये है कि डी डाइमर इज वेरी हाई, इसका क्या मतलब है? सर डी डाइमर बेसिकली क्या है कि डी डाइमर जब बढ़ता है तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं आपकी बॉडी में 2 तरह की इन्फ्लामेशन होती है। एक होती है सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन, एक होती है आपकी थ्रोम्बस इन्फ्लामेशन। इस आपकी बॉडी में जब डी डाइमर बढ़ता है तो इट शोज कि आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी देखा आपने, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ बट इट्स माय इंटरप्रिटेशन, जैसे अभी रोहित सरदाना जी एक्सपायर हुए, ही एक्सपायर्ड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो डी डाइमर बढ़ने से क्या है, आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट आप देखोगे कि वो कोविड से नहीं मर रहे, वो कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं बिकॉज उनका डी डाइमर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी बॉडी के अंदर क्लोटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एंटीकोगुलेंट उसके लिए स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आपका डी डाइमर बढ़ता है, अगर आपका डॉक्टर टाइम पे एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करता है, इससे 2 फायदे होंगे। जैसे एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करेगा, आपका ब्लड का जो है वो क्लोटिंग का कैपेबिलिटी कम हो जाएगा, और जैसे कम होगा आपकी बॉडी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिकॉज जब ब्लड की टेंडेंसी क्लोटिंग की बढ़ेगी तो ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी कम करेगा, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी डाउन आएगी, आपको लगेगा लंग में इन्फेक्शन हो गया है, वो हो रहा है डी डाइमर की वजह से। अगर सिर्फ एंटीकोगुलेंट शुरू कर देंगे, मे बी दैट इकोस्प्रिन कुछ भी शुरू करे आपका डॉक्टर, इंजेक्शन शुरू करे या ओरल टेबलेट शुरू करे, डी डाइमर डाउन होना शुरू होगा, थोड़ा सा आप नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे, आपको ऑक्सीजन वापस अच्छी फील होगी, सांस खुल के आने लगेगा। वेरी नाइस। सो लास्ट कमेंट आपका वैक्सीन के बारे में, फिर हम व्यूअर्स के क्वेश्चन लेने शुरू कर देंगे। सर वैक्सीन के लिए बोलना चाहूंगा, मस्ट 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 सबको लेनी है, सबको वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। मिस जो मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस देखे मेरे आसपास, चाहे वो कोविड हो, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इट डजंट मैटर, कि जिन लोगों ने वैक्सीन करवाया है सर, उनका सीवियरिटी, उनकी डैमेज बहुत कम है कंपैरिजन टू जिनका वैक्सीन नहीं हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, 1000 में से 99,999 ठीक, उसको देखेंगे, नहीं सर वो एक मर गया, उसने दोनों वैक्सीन करवाई थी। उसके और रीजन हो सकते हैं, उसकी बॉडी में और कोमोर्बिडिटी हो सकती है, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट, CAD का पेशेंट, लीवर का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्या पता क्या रिएक्शन हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोविड वैक्सीन लगवाने का कोविड हो गया, ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एक्शन प्लान वही रहेगा। पहले दिन सिम्टम आया, फर्स्ट डे गो टू एक्शन प्लान, कुछ भी नहीं होगा। वैक्सीन इज वेरी सेफ, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। दोनों वैक्सीन सेफ हैं आपके साथ? दोनों वैक्सीन सेफ है सर। और वैक्सीन के बाद एक बात और मैंने सुनी जो मुझे पहली बार नहीं बताई गई थी जब मैंने पहला डोज लिया था, दूसरे डोज के बीच में ये अब सुनने में बहुत आया कि आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन के बाद 4-5 दिन लो रहती है, तो उसमें एक्सपोजर मिनिमम रहना चाहिए और बहुत अच्छी तरह रेस्ट करके ख्याल रखना चाहिए। सर आई विल हाईली रिकमेंड पीपल हु आर टेकिंग वैक्सीन कि प्लीज वैक्सीन लगवाने के बाद 7 डेज के लिए ये सोच लीजिए आपका आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक हाउ मच गुड न्यूट्रिशन यू कैन टेक, बिकॉज आपकी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी को इंजेक्ट किया गया है, उसकी रिएक्शंस होती हैं,
आपकी बॉडी में अगेन से फाइट शुरू होती है, बॉडी में इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चलता है। 7 डेज के लिए एटलीस्ट अपने आप को एक तरह से आइसोलेट रखिए। आइसोलेट का मतलब बाहर मत जाइए, फैमिली के साथ रहिए, आराम से रहिए, हाई न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिए, अच्छा खुश रहिए, प्रॉपर रेस्ट दीजिए बॉडी को। आफ्टर 7 डेज वो कहते हैं ना सर, तीर को जितना दूर छोड़ना होता है उतना पीछे खींचना पड़ता है। यू विल बी लाइक ए फाइटर, जस्ट वेट फॉर 7 डेज। चलो, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, अब व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। सागर कपूर काफी सवाल पूछ रहे हैं, ये वरिड हैं अपने डैड को लेके। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। मानसी महापात्रा, शी इज वेरी ग्रेटफुल फॉर द टाइम, थैंक यू मानसी। और सागर कपूर कह रहे हैं, व्हाट आर द मेडिसिन टू कंट्रोल IL-6 एंड CRP? सागर सर, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो IL-6 को और CRP कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन डिपेंड करती है पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर। आप अगर एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो आपको बता पाएंगे देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर कंट्रोल CRP। और जैसे अगर CRP बहुत हाईली रेज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जब CRP बहुत हाई रेज हो रहा है तो बॉडी में स्टोम आने वाला है, तो वो स्टीरॉइड ट्रीटमेंट को रिकमेंड करते हैं। तो आप बेटर प्लीज रैंडम ट्रीटमेंट स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज 14 डेज की बात है, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए कि व्हाट ही टू सजेस्ट फॉर योर CRP। आयुर्वेद में बात करते हैं, मैं आयुर्वेद में CRP IL-6 के लिए बहुत सारी मेडिसिन मेरे पास है जिनको मैं यूज करता हूँ, और ऐसी मेडिसिन भी है कि विद इन 24 to 48 आवर्स आई हैव सीन द रिजल्ट्स। एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, CRP नीचे नहीं आ रहा, IL-6 नीचे नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही आपका CRP और IL-6 स्टेगनेंट हो जा रहा है, उसकी ग्रोथ इंक्रीजिंग स्पीड कम हो जा रही है, दैट शोज योर ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। क्योंकि CRP और IL-6 वापस बैक टू नॉर्मल आने में महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग जाएंगे। आपका 14 डेज का फेज रिकवर हो जाएगा। दीज आर इंडिकेटर कि आपकी बॉडी में कोई नुकसान होने वाला है, आपको उसको बचाना है। CRP IL-6 नीचे आता रहेगा बाद में, 2-2 महीने भी लग जाते हैं, 4-4 महीने भी लग जाएंगे CRP नीचे आने में। ओके, सो गौतम जी कह रहे हैं कि आखिरी में जब एंड करेंगे तो एक 5 मिनट में सारा समराइज करेंगे आप उसको सिंपल लैंग्वेज में। काफी टेक्निकल जार्गन भी हमने बातें की हैं, तो जैसे आपने 1, 3, 5, 7, 11, 14 वाली एक स्टेज बाय थ्योरी बताई थी, उसको आप समराइज करेंगे याद से। तब तक सागर का फिर सवाल है कि माय डैड CRP is 96, IL-6 is 33.5, D dimer is 196. Doctor has started steroid and blood thinner and other vitamins and other antibiotics. My dad's CT score is 13. Right now he's fine. Today is his 12th day. I have a question. Is there any possibility that he may get critical? Sagar, if I say if doctor is started already steroid and blood thinners already started, vitamins started, other antibiotics started, अगर आपके डैड को फीवर नहीं आ रहा है, बहुत तेज फीवर सबसाइड हो गया है, तो 90% your dad is safe. CT score is 13, that is mild to moderate category. Again CRP is below 100, that is moderate category. और ऑलरेडी ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर फीवर सबसाइड हो चुका है, फीवर में कोई फीवर नहीं आ रहा है, तो और SpO2 मेंटेन है, तो ही इज आउट ऑफ डेंजर। वेरी नाइस, बहुत बहुत सही बात। विशाल सिंह कह रहे हैं, व्हाट टू डू इफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज नॉट अवेलेबल एंड ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीज इन बॉडी, एनी अल्टरनेट होम ट्रीटमेंट? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हम सबको पता है। सर किसने पूछा क्वेश्चन ये? विशाल सिंह। विशाल सर, ऑक्सीजन का इस दुनिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बताऊं, बट ऑक्सीजन को इंप्रूव करने के हजारों तरीके हैं आपकी बॉडी। मैंने जैसे पहला बताया कि देखो, अब जो सिचुएशन एकदम से हाथ से निकल गई है, उसके लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए सोच के हम बाकी चीज करने नहीं छोड़ देना है। मैं बोल रहा हूं, पहले दिन से आपको खांसी है नहीं है, जुकाम है नहीं है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही करना है। वन ऑफ द गुड मेथड टू इंप्रूव योर ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन आ रहा है, आप स्टीम को हर 2 घंटे में देना शुरू कर दो, हर 2 घंटे में स्टीम देना शुरू कर दो, आपके ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाएंगे। आप प्रोनिंग कीजिए, 2-2 घंटे तक प्रोनिंग कराइए उनको, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाएंगे। दिस इज अ मैनेजमेंट, बट इज नॉट द अल्टरनेटिव ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये सब करने से आपका इन्फेक्शन, मान लो ये 3-4 दिन ये करते करते आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन चल रहा है, 4 दिन बाद इन्फेक्शन कम हो गया है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिकवर कर जाओगे। तो दिस इज थिंग की मैनेजमेंट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है कि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करें, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते करते 4 दिन निकल गया तो आपका वायरल लोड 50% कम हो गया, आपका इन्फेक्शन क्योर होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, क्या आपको जरूरत ही ना पड़े ऑक्सीजन की।
और कंसंट्रेटर का क्या रोल है इसमें, जो बहुत कुछ डिमांड चल रही है अभी? कंसंट्रेटर इज गुड अल्टरनेटिव, नो डाउट सर, कंसंट्रेटर यूज कर सकते हैं। बट कंसंट्रेटर का यही है कि जब तक आपकी SpO2 80 से ऊपर है तो तब तक ज्यादा पावरफुल वर्क करते हैं, उससे नीचे वाली में वर्क नहीं कर पाते हैं। बट अगेन ऑक्सीजन डिप होने का कारण क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आज एक पेशेंट का कॉल आया था मेरे पास, उनकी ऑक्सीजन 70 रह गई थी। देन दे टोल्ड वी स्टार्टेड विद द कंसंट्रेटर, ठीक है, और कंसंट्रेटर चलाते ही उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कंसंट्रेटर पे 95 आ गई। इट मींस वहां पर अभी तक निमोनिया की वजह के, निमोनिया को छोड़कर और भी रीजन प्रेजेंट है जो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर रही है। या तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रोनिंग भी नहीं कर रहे हैं, स्टीम भी ढंग से ले रहे हैं, और कोई रीजन ब्लड थिक हो गया है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज वेरी हेल्पफुल टूल, मस्ट यूज। ओके, शैलेंद्र चौरसिया जी का सवाल है, प्लीज आस्क अबाउट प्लाज्मा थेरेपी, व्हेन कैन वन डोनेट एंड व्हेन कैन वन नीड इट? डोनेट का सर ये है कि आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होने 14 डेज के बाद, 15 दिन के बाद आप कभी भी डोनेट कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के बाद आप कभी डोनेट कर सकते हैं। और मोस्टली बोलते हैं 6 महीने या 3 महीने तक आपकी एंटीबॉडीज उतनी पावरफुल सिचुएशन में रहती हैं कि डोनेट कर सकते हैं। और प्लाज्मा कोवलेंट थेरेपी जो है, दिस इज अ थेरेपी ओनली फॉर द इमरजेंसी एंड सिचुएशंस, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इट इज बेटर डॉक्टर विल डिसाइड, बट मोस्टली ये थेरेपी जब यूज की जाती है अगर आपका इन्फेक्शन 11th डे पे भी सबसाइड नहीं हो रहा है, सिचुएशन और क्रिटिकल होती जा रही है, देन दे गो फॉर द प्लाज्मा थेरेपी। अनिल परदेसी पूछ रहे हैं, विच ट्रीटमेंट इज बेस्ट, आयुर्वेदा और एलोपैथिक? सर इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एक्शन प्लान ऑफ यू एंड योर डॉक्टर. Every treatment is good for the mankind, and everyone who is serving in the frontline workers, the healthcare workers, trying their best to do for you. It's Ayurveda, it's homeopathy, it's allopathy, it doesn't matter. ये 14 दिन ये चीज लड़ने के लिए नहीं है कि मैं आयुर्वेद करूं, एलोपैथी करूं, होम्योपैथी करूं। इसमें सिर्फ ये है कि ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करो, फर्स्ट डे में इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करो, अपने कंसल्टेंट से 24 आवर जब भी कोई सिम्टम इधर उधर दिखता है ऑब्जर्वेशन में रहो, और उनको आपकी सारी डिटेल्स दो, सर ये सिम्टम मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। दैट इज द ओनली, ये जो चीजें हैं ये मैजिक करेंगी। आयुर्वेद भी अपना काम कर रहा है, आयुर्वेद से भी लोग ठीक हो रहे हैं, एलोपैथी से भी ठीक हो रहे हैं, होम्योपैथी से भी ठीक हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड डॉक्टर। राइट, कई एलोपैथी डॉक्टर या और डॉक्टर जो इतने बिजी हैं, कई बार वो पेशेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ डैमेज हो जाता है। अच्छा, राजा इत्प्लानी साहब पूछ रहे हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर डिस्टेंसिंग एट होम विद फैमिली मेंबर नॉट वैक्सीनेटेड? यस सर, प्लीज। फैमिली मेंबर वैक्सीनेटेड नहीं है, आप वैक्सीनेटेड हो गए हो, उनसे डिस्टेंस रखोगे कि घर पे सब ठीक है? नहीं सर, डिस्टेंस नहीं रखना है सर। डिस्टेंस क्यों रखना? आप कब तक डिस्टेंस रखेंगे? ऐसे थोड़ी है कि डिस्टेंस रखेंगे तो कोविड नहीं होगा। आपको वैक्सीनेशन लगवाना है, आप घर पे आइसोलेट रहने का मतलब ये है वैक्सीनेशन के बाद स्पेशली कि आइसोलेट आप रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, और बाहर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन है, बहुत सारे लोगों से नहीं मिलना, तो फैमिली मेंबर से 2-4 के साथ रहिए, दैट्स इट। अब बाहर जाके सबसे मिलना है, मुझे डोज लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। राकेश बारिया पूछ रहे हैं, हाउ मच रिस्क इज गेटिंग द सेम थ्रू आइटम्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड लाइक ग्रोसरी, मिल्क, पार्सल, अमेज़न, ये कोरियर जो आ रहे हैं, उनसे कितना हमारे को एक्सपोजर और? सर देखो, इस पे ऐसा है कि सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी पार्सल आता है उसको 2-4-6 घंटे के लिए रख दीजिए, डेट्स इट। उसके बाद आप यूज कर सकते हो, सैनिटाइज स्प्रे करके यूज कर सकते हो, डेट्स इट। और सिंपल से बात है, उस पर जो भी कवरिंग आती है तो खोलने के बाद बॉक्स को फेंकिए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, वॉश कर दीजिए, डेट्स इट। ऐसे उड़ के नहीं आएगा सर, बॉक्स के ऊपर से उड़ के नाक में नहीं जाएगा। ओके, अंकित गुप्ता पूछ रहे हैं, आई गॉट ए क्वेरी, इन केस ऑफ नॉर्मल निमोनिया हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू हील? सर निमोनिया एक होता है निमोनिया कंट्रोल करना, लाइक फर्स्ट जब 14 डेज का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चल रहा है निमोनिया को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट। जैसे ही 14 डेज ओवर होते हैं, आपका इन्फेक्शन जो है, जो मींस जो कोविड इन्फेक्शन है, वो नेगेटिव हो जाता है। अब बचा निमोनिया। निमोनिया को ठीक होने में, निमोनिया के पैच रिजोल्व होने में 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। वेरी नाइस। एक बड़ा अजीब सवाल आया राजा इत्प्लानी से, डज वैक्सीनेटेड पर्सन इज डीम्ड पॉजिटिव एज डेड वायरस इज इंजेक्टेड इन द वैक्सीन? नो सर, वायरस का मॉड्यूल ये, इसमें वायरस ऐसे नहीं डाला था, इट इज लाइव एटेन्यूएटेड वायरस और डेड वायरस, और इसके कंपोजिशन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके आरटीपीसीआर में आपका कोविड पॉजिटिव आया करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शैलेंद्र का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आफ्टर पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट व्हेन शुड वन गो फॉर वैक्सीनेशन?
मिनिमम इट नीड्स 2 to 3 weeks ऑफ टाइम, उसके बाद आप वैक्सीनेशन में जा सकते हैं। All right. Can diabetic and BP etc. people donate plasma? So it all depends on your condition कि how much good you are at your health, और आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके पास से प्लाज्मा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। Somesh Arora, how to find first day symptom and what can I do from today onwards so in case COVID hits me, my body can face itself? Very good question. There are the common symptoms of COVID is fever, tiredness and headache. These are the 3 common symptoms जो आजकल मिल रहे हैं। इसके साथ में जो अदर सिम्टम्स हैं, नॉर्मल कोल्ड, गले में खराश होना, लगातार छींके आना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, ठीक है, हल्का, और आपको बॉडी में एकदम से वीकनेस, सडनली वीकनेस महसूस होना शुरू होना, फीवर आ जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। मैंने वही कहा, अभी हमारे पास ये टाइम सोचने का नहीं है कि 2 दिन वेट करते हैं, नॉर्मल वायरल तो नहीं हो गया, सर्द गर्म से बुखार तो नहीं लग गया, नहीं। स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फ्रॉम फर्स्ट डे, टेस्ट करवाओ, RT-PCR नेगेटिव आ जाए तो बंद कर देना, 1 हफ्ता खा के क्या हो जाएगा, सेफ तो हो। सही बात है। बहुत से लोग मैंने देखा टाइम खराब किया, 3 दिन तक कह रहे लग नहीं रहा है कोविड है, मुझे तो वायरल है। बहुत लोगों ने टाइम खराब। सर मैं इस पे स्टडी नहीं हुई है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ, जितने लोग सीरियस हो रहे हैं, अगर मान लो 10 लोग सीरियस हो रहे हैं, 10 में से 4 लोग वही हैं जिन्होंने पहले 3 दिन ट्रीटमेंट नहीं किया। ओके। विक्रांत पूछ रहे हैं व्हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज सो हाई दिस ईयर, व्हाई डिड इट नॉट हैपन लास्ट ईयर लाइक सेम, नो पैनिक लास्ट ईयर ऑफ ऑक्सीजन, अभी क्या फर्क पड़ गया था? वेरी गुड क्वेश्चन सर। सबसे पहली बात तो है कि स्ट्रेन पे डिपेंड है। इस बार का जो स्ट्रेन है वो लंग्स को काफी इफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि मैंने बोला ना सर, ऑक्सीजन जितनों को चाहिए उससे ज्यादा वो खड़े जिनको नहीं चाहिए, इसलिए पैनिक हो रहा है। तो सर ऑक्सीजन गलती से, आप ये बताओ, बॉडी में वायरल इन्फेक्शन गया है, सीवियर फीवर आ रहा है, हमने पहले कभी नोट नहीं किया, एक्चुअली हमने पहले कभी नोट नहीं किया। जब हमें हाई ग्रेड फीवर आता है बॉडी के अंदर, तो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन वैसे 3-4% ड्रॉप हो जाती है। आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी 98% नहीं रहती हाई ग्रेड फीवर में। आपको नॉर्मली जब कोल्ड साइनस ब्लॉक हो जाता है तब भी आपकी सैचुरेशन 2-3% डाउन आ जाती है, लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अब घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखा है, एक छींक आई पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में, के भी उंगली में जा रहा है। 4-5 खांसी, अब देखो सर क्या होता है, लगातार आपको 15 सेकंड के लिए खांसी आ गई, खांसी के 15 सेकंड लगातार आने से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 4 से 5% डाउन हो जाती है। और हम उसी टाइम खांसी आएगी और उसी टाइम लगाएंगे, चेक करेंगे, खांसी आते ऑक्सीजन डाउन होनी शुरू हो गई है, मेरी O2 ड्रिप होनी शुरू हो गई है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। और उस पैनिक सिचुएशन में आप कभी देखना, जब ऑक्सीजन ड्रिप हो रही होती है उसकी पल्स रेट बढ़ रही होती है। अब एक हार्ट 72 टाइम्स पंप कर रहा है, एक जनरल बात करता हूं बिल्कुल, और वो 72 टाइम्स में ऑक्सीजन कलेक्ट करता है, पूरी बॉडी में पंप करता है। अब उस हार्ट ने क्या किया, टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब पैनिक होने की वजह से हार्ट बीट पहुंच गई है 109, 110, हाई ग्रेड फीवर में भी 110, 115। अब वो हार्ट इतनी ज्यादा बार पंप कर रहा है, तो जब हार्ट इतनी ज्यादा पंप करेगा तो क्या करेगा, ना तो पूरा कोलैप्स हो पाएगा, ना पूरा इन्फ्लेट होगा, तो पूरा खुलेगा ही नहीं, तो पूरी ऑक्सीजन कैसे लेगा, पूरा ब्लड कैसे लेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पंप करेगा वो। इसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ी डिप हो जाती है, इसलिए जब काम रहेंगे तो ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हो जाती है। वैष्णवी का सवाल है, सर व्हाट इज द रीजन ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड एंड पेन इन लेफ्ट लेग, हेडेक आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड? मैंने जैसे बताया कि आपके इसमें प्रोटीन की डैमेज बहुत होती है बॉडी में वीकनेस भी बहुत आती है। और मेरा ये मानना है कि इसके जब आपकी, और दूसरा इसमें आप बहुत सारे लोगों को जैसे गट में भी डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है। तो इसमें सिंपल सा रीजन मुझे जो लगता है, एक तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से बॉडी के अंदर आपकी जो नर्व्स हैं उनकी कवरिंग जो प्रोटीन्स की बनी होती है, तो अब एक वायर है जो उसके ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, तो उसमें कंडक्शन अच्छे से होता है। और एक वायर का ऊपर कवरिंग उतार दो, उसमें स्पार्किंग्स होने लग जाती है, करंट आगे नहीं जाएगा, स्पार्किंग होने लगेंगी। तो ऐसे आपकी प्रोटीन कवरिंग जब वीक हो जाएगी नर्व्स की, तो वहां स्पार्किंग्स होती है, वो स्पार्किंग्स ही आपको टिंगलिंग और नमनेस के रूप में बॉडी में मिलती है। दूसरा, बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाता है जब बॉडी में सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं ऐसे। तो जस्ट चेक योर विटामिन B12, it will work out. नरेंद्र पूछ रहे हैं, I was tested COVID positive on 20th March. I got vaccinated first dose on 19th April. Now since 2 days I am suffering from cold and sneezing. Please advise. Okay. सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें सर जनरल ऐसा है कि वैक्सीन के बाद नॉर्मली ये सिम्टम लोगों को 3 से 4 दिन तक आ रहे हैं। 3 to 4 days इज मैक्सिमम व्हाट आई एम सीइंग पीपल, फीवर और कोल्ड होना। 3-4 दिन के लिए आप जो है नॉर्मल मेडिकेशन, अगर फीवर 100 से ऊपर जाता है तो आप डोलो 650 ले सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मली ऐसे सिम्टम 3 to 4 days तक देखे जा रहे हैं।
और 3 to 4 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं और थोड़ा हॉट वाटर लीजिए। फीवर अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो आप फीवर को कम करने वाली मेडिसिन डोलो 650 वगैरह ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। और अगर 3-4 दिन करने के बाद भी आपके सिम्टम सबसाइड नहीं हो रहे हैं तो प्लीज गेट इन टच विद कंसल्टेंट। दैट्स इट। So thank you very much डॉक्टर अमित वर्मा। अब आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए, 1 घंटा इन्होंने दिया। बहुत मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में कहीं भी इसको बांट दीजिए। फोन उठाना मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं कर लूंगा। आप इसको कीजिए, आप कभी कॉल कीजिए, कोई परेशानी हो मैं आपके साथ। ये मेरे नंबर करती है, नंबर मैं बोल देता हूँ 8447426748 एंड सेकंड इज 8303000777। सबसे पहले तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। जो भी हमारे सेफ्टी मेजर कोविड-19 के लिए बताए गए हैं प्लीज उनको फॉलो कीजिए। बाहर जाते हैं डबल मास्किंग कीजिए, अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, सब कुछ करिए। फिर भी उसके बाद अगर बाई चांस आपको सिम्टम आता है तो आई ऑलवेज से रूल ऑफ 1 3 5 7 9 11। सो फर्स्ट डे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला दिन आपके हाथ में, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये भी है, तो आपकी लाइफ आपके खुद के हाथ में है। अगर आपने फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया तो डॉक्टर बाकी 3rd 5th 7th 9th 11th को देख लेगा, ठीक है। तो दैट इज द रूल यू शुड फॉलो इन योर लाइफ। एंड अगर आप बाहर काम करते हैं, सेफ्टी मेजर में आप स्टीम लीजिए, जैसे मैंने बताया प्रतिमर्श से ऑयल पुलिंग थेरेपी और ये डिफरेंट थेरेपीज में गार्गल्स कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट खाइए। तो ये सब आप फॉलो कीजिए टू कीप योरसेल्फ सेफ। कोविड होने के बाद अगर आपको लगता है पहले दिन को सिम्टम आ गया है, डोंट वेट फॉर दैट कि इट कैन बी वायरल और इट कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम हो गया होगा। पहले दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, वो ज्यादा समझदारी वाला निर्णय होगा। अगर बाई चांस कोविड नहीं भी निकला 7 दिन बाद बंद कर देना ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होगा। कोविड के टाइम में प्लीज पहले दिन से हाई प्रोटीन रिच डाइट खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है, क्योंकि ये डाइट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी आपको फाइटिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। जब बॉडी वीक नहीं होगी तो आपका मन भी वीक नहीं होगा। आयुर्वेद में हमेशा बोलता हूँ, जब शारीरिक व्याधि होती है तो मानसिक व्याधि हो जाती है, और जब मानसिक व्याधि होती है तो शारीरिक व्याधि हो जाती है। तो अपने शरीर और मन दोनों को दुरुस्त रखिए, चुस्त रखिए, स्वस्थ रहिए। और बताना चाहूंगा कि पैनिक नहीं होना है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ये हाई एंटीबायोटिक्स, ये इंजेक्शन 3 इंजेक्शन, ये स्टीरॉइड खा लेता हूँ पहले दिन से, ये सबके लिए नहीं बना है। प्लीज कुछ जो डिसीजंस हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेंगे आपके लिए कब करना है, कब नहीं करना है, कब आपको स्टीरॉइड खाना है, कब नहीं खाना है। एंड प्लीज बी ए गुड ऑब्जर्वर एंड ए बिग एक्शनर इन दीज 14 डेज। आप अगर अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हो और एक्शन प्लान वीक रह गया तो 14 डेज बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। प्लीज वैक्सीनेशन कीजिए, अपने आप को, अपने आसपास वालों को गाइड कीजिए, अच्छे से समझाइए कि वैक्सीनेशन करना बहुत ही जरूरी है। और जो ये ब्लड टेस्ट बार बार रैंडम सीटी स्कैन करवा रहे हैं, प्लीज इसको बंद कीजिए। इनको बहुत वाइजली यूज करना है कि कब सीआरपी करना चाहिए, कब हमें डी डाइमर करवाना है, कब IL-6 करना है, कब सीटी स्कैन करवाना है। ये सब डिसीजन वाइजली डॉक्टर लेगा तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज रैंडमली टेस्ट करने जाइए, इससे आप भी पैनिक होंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो मैं एंड करूंगा 2 लाइनों के साथ के हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा बन जाते हैं। तो इसलिए हौसला रखिए, पॉजिटिविटी बना के रखिए।